میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں صبح سویرے سورج کی کرنیں تیز ہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ بالکل، اگر بات کر لی جائے شہر لاہور میں موسم کی تو آج شہر کا موسم گرم اور خشک ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج شہر کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 81% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر میں تاحال بارشوں کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بارشیں نہ ہونے کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی کے جو ڈیرے ہیں وہ شہر میں برقرار ہیں۔ گزشتہ روز کی نسبت آج فضائی آلودگی میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ شہر کا مجموعی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 394 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 345 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مصری شاخ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 370 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے بعض ایسے علاقے ہیں جن کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 300 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ فضا جو ہے وہ دن بدن آلودہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ تمام جو اہم شاہراہیں ہیں ان کے اوپر جو پانی کے جو سپرے ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ فضائی آلودگی کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث ناک، کان، پھیپھڑوں کی بیماری اور سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہریوں کو یہی کہا ہے کہ ماسک کا استعمال اور گلاسز کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں تاکہ جو فضائی آلودگی ہے اس سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ نجی فارماسوٹیکل کمپنی کا محکمہ صحت اور مریض بچوں کے ساتھ کھلواڑ دوا پیراپول کے 25 سے زائد نمونے فیل قرار پائے۔ تمام سیمپلز کو پنجاب کے مختلف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں ٹیسٹ کیا گیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں۔ زیادہ منافع کے لالچ میں نجی فارماسوٹیکل کمپنی مریض بچوں کی صحت داؤ پر لگا کر محکمہ صحت کو چکمہ دینے لگی۔ کمپنی لسکو کی دوا پیراپول کے 25 سے زائد نمونے غیر معیاری نکلے۔ دوا پیراپول پیراسیٹامول کے نمونے پنجاب کے مختلف اضلاع سے لیے گئے تھے۔ نجی فارماسوٹیکل لسکو نے زیادہ منافع کی خاطر دوا کی ساکھ ہی تبدیل کر دی۔ ڈریپ کی رجسٹریشن کے مطابق پیراپول کو سسپینشن بنانا تھا، لیکن نجی کمپنی سیرپ بنا رہی تھی۔ سسپینشن کی بجائے سیرپ بنانے سے دوا کی لاگت میں واضح کمی ہوتی ہے، جبکہ اثر بہت کم۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پیراپول کا سسپینشن نہ ہونے سے دوا کی افادیت متاثر ہوتی ہے۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ڈینگی کے کیسز میں روز بروز اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 95، صوبہ بھر میں 202 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں سخت فیصلے کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ڈینگی مچھر کے شہریوں پر وار جاری۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 95 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 202 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی میں 20، ملتان میں 17، گوجرانوالہ میں 41، فیصل آباد میں 12 نئے مریضوں کو ڈینگی لاحق ہوا۔ شیخوپورہ میں ڈینگی کے 5، حافظ آباد میں 3، اوکاڑا اور بہاولپور میں 2 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اٹک، سرگودا، خانیوال، چکوال اور پاک پتن میں بھی ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا۔ موسم کی تبدیلی پر ڈینگی افزائش روکنے کے طریقہ کار میں تبدیلی۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ٹیموں کو انڈور ڈینگی سرویلنس بڑھانے کا حکم دے دیا۔ محکموں کی جانب سے ڈی وی آر بر وقت حل نہ کرنے کا نوٹس۔ سستی دکھانے والے فوکل پرسنز کے محکموں کے سربراہوں کو خط لکھنے کی ہدایت۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں سخت فیصلے کیے گئے۔ رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت میں کمی سے ڈینگی کی انڈور افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تحصیل کینٹ میں ڈینگی لاروا کی شکایات زیادہ ہیں۔ اسی کینٹ سرویلنس میں تیزی لائیں۔ زیادہ مریضوں والی یو سی میں
में घरों के बाहर सर्वे तारीख दर्ज की जाए। हॉटस्पॉट इलाकों में डोर मार्किंग और कवरेज क्वालिटी में मजीद तेजी लाई जाए। महकमे नाकाबिले शनाख्त पता या दीगर वजह डालने की बजाय शिकायत को 100% हल करें। DC लाहौर आफिया हैदर का मजीद कहना था कि इंसदाद डेंगू सरगर्मियों में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताएं कि लाहौर को स्मोक से बचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया सरगर्म है। कोई पायरोलिसिस प्लांट चलाता पाया गया तो महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर लाहौर ने सख्त वार्निंग जारी कर दी। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर को बताया गया है कि डिवीजनल सतह पर इंसदाद स्मोक सेल कायम कर दिया गया है। ADCC अब्दुल अस्लाम आरिफ चेयरमैन सेल होंगे, जबकि कमिश्नर लाहौर ने माहौलियात अफसरों के इंसदाद स्मोक एक्शंस को थर्ड पार्टी से तस्दीक कराने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर ने मोटरवे के इर्द गिर्द के इलाकों में फसलों की बाकियात को आग लगाने के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली है। कमिश्नर लाहौर ने रेत और मट्टी के बगैर कोर्ट ट्रालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को नाके लगाकर सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे शाहिद अजीज़ ने कहा है कि रेलवे की माली मुश्किलात के बायस किरायों में कमी अभी मुमकिन नहीं। मुलाज़िमीन की तनख्वाहों की अदायगी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। रेल मुसाफिरों को किरायों में रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद रेलवे इंतजामिया का किरायों में कमी से इनकार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे शाहिद अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माली मुश्किलात के बायस किरायों में कमी अभी मुमकिन नहीं। इस वक्त मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दे तो मसला हल होगा। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि जी किराए डीजल की कीमत बढ़ी है, हमने किराए नहीं बढ़ाए, और फिर 2 दफा जो बढ़ाए हैं, जितने डीजल की प्राइस बढ़ी है उससे कम बढ़ाए हैं। CEO रेलवे शाहिद अजीज ने मजीद कहा कि रेलवे के ऑपरेशनल मुनाफे में जाने के बावजूद पेंशन अदायगी बजट मुतवाजन नहीं होने दे रही। ML1 2013 से खटाई में पड़ा है। चीन की मदद से सखर डिवीजन के ट्रैक पर अमली काम जनवरी में शुरू होगा। 4 से 5 अरब हमें चाहिए ताकि हम जो हमारा बैकलॉग है उसको क्लियर कर सकें। और अगर मेंटेनेंस की बात करें, उसमें ट्रैक की मेंटेनेंस और रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस है, तो फौरी तौर पे 8 से 10 अरब हमें चाहिए ताकि एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे हम अपने रोलिंग स्टॉक को और ट्रैक को हम क्लियर कर सकें। CEO रेलवे का मजीद कहना था कि अमेरिका में एक इंजन की मुरम्मत और देखभाल पर $800 खर्च होते हैं। पाकिस्तान में $100 भी दस्तियाब नहीं। हजारा एक्सप्रेस हादसे की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी न होने पर रेलवे मुलाजिमीन सराफा एहतजाज बन गए। रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से कासिर। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी न होने पर सरापा एहतजाज है। रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी धरना। एहतजाज में रेलवे शेड, रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.5 साल से हर माह तनख्वाह ताखीर से दी जा रही है। काम पूरा करते हैं तो तनख्वाह भी वक्त पर अदा की जाए। तनख्वाहों की ताखीर से अदायगी के बायस माली मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। बच्चों के स्कूल की फीस तक वक्त पर अदा नहीं कर पा रहे। 60 से 70 हज़ार लोग जिनके घर के में आज फाके हैं, आज तनख्वाह हफ्तों नहीं बल्कि महीनों लेट हो रही है। तो हमने तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन एक है कि निगरान गवर्नमेंट और मौजूदा रेलवे का वजीर, बल्कि गुमशुदा वजीर, जो रेलवे का निगरान वजीर तो बन गया, उसने हलफ तो उठा लिया, लेकिन उसको अपने महकमे के मुलाजमीन का नहीं पता कि वो आज भूखे मर रहे हैं। एक ही एजेंडे पे हम इकट्ठे हुए हैं। 1.5 साल से हम ये खिलौना खेल रहे हैं। कोई मुख्तलिफ जगह पे हमें पापी लॉल दिया जाता है कि आपको तनख्वाह इस दफ़ा मिल जाएगी, इस दफ़ा राइट टाइम हो जाएगी। हम सिर्फ तनख्वाह के लिए निकले हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने के बायस घरों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। रेलवे इंतजामिया ने बर वक्त तनख्वाहें अदा न की तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन हाफिज मोबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के 5 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों का कंट्रोल NGO से वापस लेने का फैसला है। 2200 डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल के बेरोज़गार होने का खदशा बढ़ गया है। आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी हेल्थ ने NGO अंडस को 5 अस्पताल 31 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ दौर में
NGOs इंडस को काहना, रायविंड, सब्जाजार, मनावा और बेदिया रोड के हस्पतालों का कंट्रोल दिया गया। मनावा हस्पताल भी इस वक्त इंडस के पास है, जबकि मनावा हस्पताल के रासी पर कैंसर हस्पताल बनाया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि इंडस इंतजामिया ने 31 अक्टूबर को मनावा हस्पताल छोड़ने की इतला दे दी है, जबकि कोशिश होगी कि हस्पताल के तमाम मुलाजमीन को बेरोजगार ना होने दिया जाए। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है, कीमत में इस्तेकाम है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 420 रुपये किलो बरकरार है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी मुस्तकिम। जिंदा ब्रायलर होलसेल 270, परचून रेट 280 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत में 325 रुपये फी दर्जन बरकरार है, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 9630 रुपये में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नशनामे जारी किया गया उसमें अंडों और ब्रायलर की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। अंडों की कीमतें पिछला 1.5 माह से मुसलसल बढ़ रही थी, ताहम आज जो है उसमें इजाफा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा और कीमतें जो है 325 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। लेकिन ये कीमतें सरकारी नशनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में जो अंडे हैं वो शहरियों को 340 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी की कीमत 9630 रुपये मुकर्रर की गई है। ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कम हो रही थी, लेकिन आज ब्रायलर की कीमतें जो हैं 420 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। और इस हवाले से जो पोल्ट्री ट्रेडर है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अंडों की कीमतों में आज इतना इजाफा होने की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अंडों की खपत जो है वो कम हुई है। शहरियों की जानिब से जो है महंगे अंडों की खरीदारी जो है वो खासी हद तक कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकारी रेट इसमें कीमत में इजाफा नहीं किया गया। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। महकमा खुराक ने सरकारी गंदम की इजराई कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपये से ज़ायद महंगा होने का इम्कान है। महकमा खुराक पंजाब की नई गंदम पॉलिसी की समरी महकमा खजाना को अरसाल। निगरान पंजाब काबीना 2 रोज में गंदम पॉलिसी पर फैसला करेगी। फ्लोर मिल्स को नए रेट्स पर गंदम का इजरा जल्द शुरू होने का इम्कान। गंदम की इजराई कीमत 4200 से 4350 रुपए मन करने की सिफारिश। आटे के थैले का रेट 1256 और 1274 रुपए होने का इम्कान। गुज़िश्ता बरस सरकारी सतह पर गंदम 2200 रुपए मन खरीदी गई। इस साल सरकारी सतह पर 3900 रुपए मन खरीदी गई। इमदादी सरकारी गंदम की कीमत में 1700 रुपए का इजाफा हो चुका और अब रिलीज प्राइस बढ़ने से मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मौसम सरमा आते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होने लगा है। तलब बढ़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। खरीदार दुकानों से ड्राई फ्रूट के रेट पूछकर मायूस वापस जाने लगे हैं। मौसम सरमा आते ही ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ गई है। ड्राई फ्रूट की मार्केट में वैरायटी तो आ गई, मगर रेट आसमान पर। बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू की कीमतें हजारों रुपए में पहुंच गई। चलगोजे की वैरायटी देखकर तो खरीदारों के दिल मचलने लगे। ड्राई फ्रूट की होशरुबा कीमतें सुनकर शहरी परेशान। कहने लगे इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। अभी जो रेट मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुनने की हद तक तो सिर्फ ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी की जेब का देखा जाए तो एक आम आदमी ये चखना भी दूर की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके रेट्स में भी अप एंड डाउन होना चाहिए। 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, 3% क्या लेके इजाफा हो गया। पहले जो चीज़ 400-500 में थी, अब 1200-1500 रेट हो गया उसका। दूसरी तरफ दुकानदारों का ये कहना है कि तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। ड्राई फ्रूट की कीमतें इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट इस वजह से महंगी हुई, इम्पोर्ट महंगी हो गई है। अब अफगानिस्तान के जो रास्ते बंद है, कोयटा अफगानिस्तान, वो एक होलसेल की आलमी मंडी है। वहाँ से ये लाहौर आता है, वहाँ से माल आ ही नहीं रहा, वहाँ पे माल स्टक हुआ पड़ा, जिस वजह से माल महंगा हो गया। खुश्क मेवाजात की दुकानों पर खरीदारी में अभी तेजी नहीं आ सकी। बहुत सी शहरी चलगोजे, काजू, पिस्ते और बादामों के रेट पूछकर ही जेबें टटोलते हुए मायूस लौट जाते हैं। कैमरामैन गजमफर के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। अदरक 900, लहसुन 560, टमाटर 130, प्याज 110, लीमू 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा है। मटर 500, शिमला मिर्च 220, मेथी 200, आलू 120, बैंगन 100 रुपये किलो बिकने लगे हैं। अनार बदाना 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा है और केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर।
آج بالکل آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامہ جاری کیا گیا اس میں بجائے صرف ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، جبکہ باقی جو سبزیاں سرکاری ریٹ لسٹ میں درج کی گئی ان کی قیمتیں مستحکم رکھی گئی ہیں، لیکن یہ استحکام صرف سرکاری ریٹ لسٹوں تک ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو سبزیاں ہیں وہ منمانی قیمتوں پر دکانداروں کی جانب سے فروخت کی جا رہی ہیں۔ پیاز 88 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 110 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 110 روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ کی قیمت ہے، مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن ہر نائٹ 10 روپے مہنگا کر کے 440 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 560 سے 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 640 کے برعکس 900 روپے فی کلو تک، جبکہ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹینڈے دیسی 140 روپے مقرر کیے گئے، لیکن فروخت 200 روپے فی کلو تک۔ آلو 95 کے برعکس 120 روپے، میتھی 140 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ بند گوبھی 100 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 160 کے برعکس 220 اور مٹر جو ہے وہ 360 کے برعکس 500 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو پھل ہے ان میں سیب کالا کلو 215 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 330 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سیاسی مصروفیات، سابق وزیر اعظم آئندہ ہفتے سے اپنی سیاسی مصروفیات کا آغاز کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے انتخابی مہم کا لائے عمل ترتیب دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سیاسی مصروفیات، پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ ہفتے سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ نواز شریف نے پارٹی کو انتخابی مہم کا لاہے عمل ترتیب دینے کی ہدایت کر دی۔ انتخابی مہم کے تحت نواز شریف ملک بھر میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے جلسے اور کنونشنز کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نون لیگ کی صوبائی تنظیموں کو جلسوں کے شیڈیول انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پارٹی کی صوبائی تنظیموں کی جانب سے نواز شریف کو اپنے اضلاع میں پہلے جلسے کرنے کی بھی دعوت۔ پنجاب کی تنظیم نے نواز شریف کو قصور میں پہلا جلسہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نواز شریف کو مانسہرہ میں جلسہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے جلسوں کے لیے مقامات، تاریخ اور دیگر امور پر مشاورت شروع کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سندھ اور بلوچستان کے دورے بھی کریں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام عہدیداروں، رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے حلقوں میں فعال رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز الگ الگ علاقوں میں جلسے کریں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 48 روز میں بجلی چوری پر 6,978 صارفین اور 9 لیسکو ملازمین کو گرفتار کیا گیا۔ 41 ملازمین کو معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 48 روز کے دوران بجلی چوری پر 6,978 صارفین اور سہولت کاری پر 9 ملازمین کو گرفتار کیا گیا۔ 41 ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ انسداد بجلی چوری مہم کے 48ویں روز ریجن بھر میں 275 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی 273 درخواستیں دی گئیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 12 کمرشل، 1 زرعی، 3 انڈسٹریل اور 259 گھریلو شامل ہیں۔ ترجمان لیسکو کے مطابق تمام کنیکشنز منقطع کر کے 1,84,25,980 روپے ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے۔ کوئنز روڈ پر ایک صارف کو 7,50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ جنا ٹاؤن ہنجروال میں بجلی چوری پر 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ اسلامیہ پارک لٹن روڈ پر صارف سے 2,26,000 روپے چارج کیے گئے۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 21,194 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 20,228 مقدمات درج ہو چکے۔ بجلی چوروں کو اب تک 1,82,86,35,385 روپے ڈیڈکشن بل ڈالے گئے ہیں۔ FIA امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی ہے۔ جعلی دستاویز پر کینیڈا اور یونان جانے والے 3 مسافر کو طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ FIA نے ملزمان کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر نے گجرات کے ایجنٹ سے $2,000 ادا کر کے کینیڈا کا جعلی ریزیڈنس کارڈ حاصل کیا تھا، جبکہ جعلی کارڈ مسافر تک پہنچانے کے لیے ایجنٹ چودھری علی نے مدد کی ہے۔ دوسری کارروائی میں جعل سازی سے یونان کے ویزے حاصل کرنے والے 2 مسافروں کو بھی آف لوڈ کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق عمر نامی ایجنٹ نے 12 لاکھ فیکس لے کر امیگریشن کی جعلی مہریں لگا کر یونان کے جعلی دستاویز بنوائے ہیں اور دونوں مسافروں کے حقیقی بھائی یونان میں مقیم ہیں۔
आईजी पंजाब का कहना है कि पुलिस शोधा को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि गाजी अफसरान और एहलकारों की जल्द सेहत और बहाली अव्वलीन तरजीह है। महकमा अपना हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पुलिस वेलफेयर के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुरअज़म गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए से जायद के फंड्स जारी किए गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला के पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे के खराजात के फंड्स की मंजूरी दी गई। रावलपिंडी के जख्मी कांस्टेबल जहां ज़ेब को तिबी खराजात के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। सरगोदा के जख्मी कांस्टेबल सरफराज अहमद को इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि गाजी एहलकारों को सिल्वर मेडल्स दिए जाएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गाजी वाल पर नाम कलिंदा करके इज्जत अफजाई की जाएगी। दूसरी जानिब शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अजीम की 17वीं बरसी पर पुलिस टीम ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कांस्टेबल मोहम्मद अजीम 26 अक्टूबर 2007 को डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुजरिमों की गोली का निशाना बने और जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालदा को वेलफेयर फंड्स बराए शोहदा के तहत फंड्स भी दिए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कौमी एयरलाइन ज़बू हाली का शिकार PIA की रुकती सांसें निजकारी से पहले बहाल रखने का फैसला, महदूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। निजकारी कमीशन ने PIA के मामलात को चलाने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। PIA की रुकते सांसें निजकारी से पहले बहाल रखने का फैसला, PIA का महदूद ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामिया के 6 कमर्शियल बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। निजकारी कमीशन ने PIA के मामलात को चलाने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी। PIA के नए स्ट्रक्चर को हतमी शक्ल देने का काम भी स्पेशल कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। कमेटी को 2 हफ्तों में अपनी तजावीज़ देने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब PSO को 13.5 करोड़ रुपए अदायगी के बावजूद PIA की 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। हुकाम का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर अदायगी के बाद PIA के मखसूस तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए 4 परवाजें मनसूख। मस्कत, दोहा और दुबई के लिए भी तैयारे उड़ान न भर सके। ईंधन के बहरान की वजह से 10 रोज में PIA की 479 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। लाहौर हाईकोर्ट ने PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी है। जस्टिस राहील कामरान ने नबील जवेद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दायर दरख्वास्त में निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया था, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरान वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी करने का मंसूबा बनाया है। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के काम कर सकती है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील पेश नहीं हुए। अदालत ने PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। शहर के शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। बल्दिया उस्मा लाहौर अरबों रुपए बजट के बावजूद एक थैला भी खर्च ना कर सकी। स्पॉट प्लांट बंद और जबकि 8.5 माह बाद भी सड़कों पर पैचवर्क का मिशन अधूरा है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहने लगी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर की शाहराहों पर पैचवर्क का काम ताहाल अधूरा। 274 यूनियन कौंसिल समेत 36 अहम शाहराहों पर 4000 से ज्यादा गड्ढे मौजूद। कमिश्नर और DC ऑफिस और बल्दिया उस्मा लाहौर को सैकड़ों शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। इंतजामिया फॉलो अप मिशन पूरा करने से कासिर है। सड़कों की मुरम्मत हो सकी न फुटपाथ लशपश हुए। 5 लाख मुरब्बा फीट एरिया पर पैचवर्क सुस्त रवि का शिकार है। सड़कों पर खड्डों की वजह से ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर है। GT रोड, एबर्ट रोड, इमामिया कॉलोनी फाटक, शाहदरा, बादामी बाग रोड मुरम्मत की मुंतजिर। इजरटन रोड, बैंक रोड, चर्च रोड, डेविस रोड पर भी खड्डे मौजूद हैं। बरकत मार्केट, अनारकली, नीला गुम्बद, क्वींस रोड, लॉरेंस रोड पर भी पैचवर्क न हो सका। शालीमार लिंक रोड, सर्कुलर रोड, अल्लामा इकबाल रोड, शाह आलम रोड भी खस्ता हाली का शिकार। करीम ब्लॉक, समनाबाद, मजंग, केनाल, लोअर माल, कोट लखपत, जेल रोड की हालत भी खस्ता है। जहूर इलाही रोड, रावी रोड, मोची गेट और भाटी गेट में सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। सरकारी असफाल्ट प्लांट फंड्स की किल्लत के बायस बंद पड़ा है। रेत, बिचुमन और क्रश बजरी की खरीदारी मुमकिन न हो सकी। चीफ इंजीनियर मियां साकिब का कहना है कि सड़कों पर पैचवर्क के लिए फंड्स की डिमांड एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को भिजवा दी, फौरी शुरू किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। शहर की ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का प्लान फिर से बंद हो गया। वासा, टीपा और PHA 58 में से सिर्फ 8 ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे कर सका है, जबकि लामा इकबाल टाउन में स्कीम मोड़, यतीम खाना, बिजली घर, मुल्तान चुंगी, क्रीम ब्लॉक और रजा ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट्स सड़क से ऊंची रही हैं। जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
मॉनसून की बारिशें खत्म होने के बाद इदारों की तरजीहात भी बदल गईं। शहर की ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का काम बंद हो गया। कमिश्नर लाहौर ने PHA, टीपा और वासा को ग्रीन बेल्ट से मुतालिक जिम्मेदारी तफवीज की थी। शहर लाहौर में 58 मकामात पर ग्रीन बेल्ट्स ऊंची होने की वजह से बारिशी पानी जमा होने की निशानदही की गई। तीनों इदारे सिर्फ 8 ग्रीन बेल्ट्स को सड़क की सतह से नीचे कर सके। सकीम मोड़, यतीम खाना, बिजलीगर, मुल्तान चुंगी, करीम ब्लॉक और रजा ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट सड़क से ऊंची है। नजरिया पाकिस्तान, अयूब चौक, शौकत खानम फ्लाईओवर, अल्लाह चौक, भल्ला चौक की ग्रीन बेल्ट गहरी न हो सकी। पीको मोड़, लाहौर ब्रिज, फिरोजपुर रोड, गजुमत्ता, मौलाना शौकत अली रोड, हमदर्द चौक की ग्रीन बेल्ट भी सड़क से नीची न हो सकी। फिरदौस मार्केट, हफीज सेंटर, नसीराबाद, ईरानी कौंसलेट की ग्रीन बेल्ट पर भी काम न हो सका। वासा ने भी मानसून से पहले ग्रीन बेल्ट को गहरा करने की इस्तदा की थी। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। हायर एजुकेशन कमीशन की सुस्ती से सैकड़ों तलबा लैपटॉप से महरूम रह गए हैं। पंजाब के 400 से 500 तलबा को लैपटॉप ना मिल सके, जबकि तलबा ने HEC को पॉलिसी में नज़रसानी का मुतालिबा कर दिया है। मेरिट पर आने के बावजूद सैकड़ों तलबा को लैपटॉप्स ना मिल सका और पंजाब यूनिवर्सिटी में बाज़ शोबाजात का सेशन पहले मुकम्मल हो गया मगर लैपटॉप ना दिए गए। अक्सर तलबा ने हायर एजुकेशन कमीशन से राबता कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3600 तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि 500 के करीब तलबा लैपटॉप से महरूम रहे, जबकि तलबा का कहना है कि लैपटॉप हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेक्रेटेरिएट से निकाल दिया गया है। महकमे के दफातर को मुख्तलिफ इमारतों में मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी बोर्ड सेक्शन को लाहौर इम्तिहानी मरकज़ में मुंतकिल कर दिया है। HED की बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को कलियातुल बनात कॉलेजेस की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट से बेदाखिली फैसले के बाद सामान की शिफ्टिंग भी शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी ऑफिस की पोंच रोड मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सामान शिफ्टिंग की वजह से HED के अमूर मुतासिर हो रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि तमाम दफ्तर को एक इमारत में मुंतकिल किया जाए ताकि रसाई में आसानी हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब का बजट खसारे में नहीं बल्कि सरप्लस है। इस हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। महकमा एंटी करप्शन को कमज़ोर नहीं किया जा रहा। देखिए लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों से अंडरपास का तामीराती काम 74% मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला ने तामीराती काम के जायजे के दौरान कहा कि बहुत जल्द खालिद बट चौक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। मंसूबे पर बारिश की वजह से ताखीर हुई। मजीद कहा बजट में खिसारे की खबरें बेबुनियाद हैं। पंजाब का बजट सरप्लस है। महकमा एंटी करप्शन को कमजोर नहीं किया जा रहा। पंजाब का बजट डेफिसिट में नहीं है, हम बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो सरप्लस दिखा रहे हैं ताकि उनको IMF में उसकी आसानी हो। तो हम सरप्लस में किसी भी सूरत में डेफिसिट में नहीं है। 4-5 दिन बारिश के वो हमने कैलकुलेट किए हैं, वो एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन बाकी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट मिलेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सिंध हुकूमत से मिलकर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ मकबूल बाकर साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं 1-2 प्रोजेक्ट्स अल्लाह करे उनके भी कंप्लीट हो जाए। रात उनसे बड़ी डिटेल में उनसे मुलाकात हुई है और हम कच्चे के ऊपर हमने काफ़ी सारा चीज़ें एक्सचेंज की हैं और इंशाल्लाह वो भी जॉइंट ऑपरेशन करके उसको भी तोड़ पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरे के मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी मौजूद थी। कैमरामैन नुमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।